Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, all of you, please take out your English grammar books as I'm going to continue with Unit 13, Degrees of Comparison. So all of you, please take out your English grammar books and turn to page number 57. Students, please take out your English grammar book. Turn to page number 57, Unit 13, Degrees of Comparison. Students, in my last video, I had explained exercise 1, which also had the rules for forming the comparative and superlative degree from the positive degree. Students, today, before I start with exercise 2, I would like to revise exercise 1, which also has the rules for forming the comparative and superlative degree. First of all, students, the 3 degrees of comparison are, students, the first one is the positive degree. We use the positive degree, students, when we simply want to describe a thing. When there is no comparison, we use the positive degree. We also use it when we consider any two things equal. बेटा जब कोई comparison नहीं होता है, simply we want to describe a thing, we will use the positive degree. And remember, before the positive degree, words a, n, as, very, they come. You need to keep this in mind, students. Then the second is the comparative degree. We use the comparative degree when we want to compare any two persons, two things or objects. बेटा कभी भी दो चीजों में हम comparison करेंगे तो हम comparative degree use करेंगे. And always remember, the comparative degree is followed by the word then. हमेशा बेटा comparative degree के बाद then आता है. Please keep this in mind. Then the third is the superlative degree. This is the greatest of the degree. And students, we use the superlative degree when we want to compare more than two persons, two things or two animals. जब भी हमको दो से ज्यादा का comparison करना होगा तो हम superlative degree बेटा use करेंगे. And remember, before the superlative degree, the word the comes. T-H-E, the. So you need to keep this in mind. Now students, the first rule is most adjectives form their comparative and superlative degree by adding er and est. बेटा जो मैक्सिमम एडजेक्टिव्स हैं वो अपना कंपैरेटिव फॉर्म कैसे फॉर्म करते हैं, उनके एंड में हम लास्ट में er लगाते हैं एंड सुपरलेटिव के लास्ट में हम est लगाते हैं. दिस इज द फर्स्ट रूल. देन द सेकंड रूल सेज स्टूडेंट्स दैट इन पॉजिटिव डिग्री विच एंड्स इन ई. बेटा पॉजिटिव डिग्री की कोई भी स्पेलिंग अगर उसके लास्ट में ई आ रहा है तो उसमें उसको हम कंपैरेटिव फॉर्म करने के लिए खाली हम उसमें आर लगाएंगे एंड सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए उसमें हम एसटी लगाएंगे. एनी पॉजिटिव डिग्री स्पेलिंग हैज गॉट ई एट द एंड. जैसे व्हाइट है, WHITE व्हाइट. व्हाइट की स्पेलिंग में लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, ई. तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम खाली आर ऐड करेंगे एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम उसमें खाली एसटी ऐड करेंगे. देन द थर्ड रूल सेज व्हेन द वर्ड्स एंड इन वाई प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट. बेटा कोई भी पॉजिटिव डिग्री की स्पेलिंग जिसके लास्ट में वाई हो एंड वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई किस में चेंज हो जाएगा, आई में. और कंपैरेटिव डिग्री में हम IER लिख देंगे और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम IEST लिख देंगे. देन द फोर्थ रूल सेज इफ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन Y with a vowel before it. अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री की स्पेलिंग जिसके लास्ट में बेटा Y हो लेकिन Y से पहले अगर वावल है तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, वो वर्ड एज इट इज रहेगा. उसमें हम कंपैरेटिव के लिए ER लगा देंगे एंड सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए उसमें EST लगा देंगे. रिमेंबर, Y से पहले अगर वावल है तो. देन द फिफ्थ रूल सेज
If the word is one syllable word, अगर कोई भी बेटा one syllable word है and ends in a single consonant, कोई one syllable word है जिसके end में एक सिंगल कॉन्सोनेंट है एंड कॉन्सोनेंट से पहले वावल है ना, तो हम उसमें क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे और ईआर लगा देंगे. सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए भी कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे एंड ईएसटी लगा देंगे. And children, I hope all of you remember how will you find a syllable in a word? Ki how many syllables are there, students? The simplest way I have taught you is put your palm in front of your mouth and then pronounce the word correctly. The number of times you feel the puff of air on your palm will tell you the number of syllables in the word. Fine? So, अगर one syllable word है जिसके last में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वावल है, तो उसमें हम कंपैरेटिव करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करके ईआर लगा देंगे एंड सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए कॉन्सोनेंट को डबल करके ईएसटी लगा देंगे. देन द स्टूडेंट 7 रूल सेज दैट जो एडजेक्टिव्स मोर देन 2 सिलेबल्स के हैं, जो बड़ी स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए जो वर्ड के आगे हम मोर लगा देंगे. कंपैरेटिव डिग्री, सपोज वंडरफुल, सो मोर वंडरफुल, बस MORE मोर हमको वर्ड के पहले ऐड करना है, न्यू वर्ड. एंड देन टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री वी हैव टू ऐड द वर्ड मोस्ट बिफोर द वर्ड. मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल. कौन से बेटा, जो मोर देन 2 सिलेबल वर्ड्स है. देन द स्टूडेंट्स, द लास्ट रूल इज कि कुछ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स वो बहुत इरेगुलर वे में फॉर्म करते हैं. दे डू नॉट फॉलो अ पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल गुड, उसका बैड, गुड का बेटर एंड बेस्ट है एंड बैड का वर्स और वर्स्ट है. सो इस तरह से वो एकदम इरेगुलर, उसमें ER EST कुछ नहीं लगेगा. सो यू नीड टू नो दीज रूल्स टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स, once again I'll repeat the tips for degrees of comparison. Students, little is used with all the uncountable nouns. बेटा जो little है वो सारे uncountable nouns के साथ यूज करते हैं. few is used with all the countable nouns. few हम किसके साथ यूज करते हैं, with the countable nouns. many is used with countable nouns. and then older and eldest can be used with both persons and things. older and eldest हम persons और things के साथ यूज करते हैं. whereas students, जो eldest होता है वो किसी एक ही, जब हम फैमिली मेंबर के बारे में, फैमिलीज या फैमिली मेंबर के बारे में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें आप eldest यूज करेंगे. एंड रिमेंबर स्टूडेंट, जो एज आई सेड कि सारे कंपैरेटिव डिग्रीज के बाद देन लगता है, बट एल्डर इज द ओनली वर्ड विच डज नॉट यूज देन आफ्टर इट. एल्डर के बाद कभी भी देन नहीं लगेगा. नाउ स्टूडेंट्स, I'll be starting with exercise 2. And exercise 2 is fill in the blanks with suitable degrees of the given adjectives. Now, students, the fill in the blanks have been given, and in the blank we have to fill with the suitable degree, and the adjectives have been given in brackets. So students, the first one is Meena is dash, then me, and in the bracket the word adjective given is old. Now, अभी बेटा old की सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री बेटा क्या होती है,
older, oldest, elder, eldest. Now if you look at the sentence carefully, Meena is dash than me, then लगा हुआ है ना. तो ऐसा said कि बेटा जिस भी ब्लैंक के बाद या जिस भी डिग्री के बाद देन लगता है वो कंपेरेटिव डिग्री होती है. फाइन. नाउ अब आपको ओल्ड की कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी? ओल्डर और एल्डर, ये दोनों ही ओल्ड की कंपेरेटिव डिग्री है. बट इन द टिप वी हैड लर्न दैट एल्डर के बाद देन नहीं लगता है ना. एल्डर के बाद देन नहीं लगता. सो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट ओल्डर. मीना इज ओल्डर देन मी. बेटा इसके लिए कीवर्ड आप पकड़ोगे देन, बिकॉज आपको दिमाग में रखना है कि अगर जो कंपेरेटिव डिग्री उसके बाद अगर देन है, जो भी डिग्री लिखी उसके बाद देन है, तो दैट मीन्स दैट इज द कंपेरेटिव डिग्री. सो बेटा दिस इज द कीवर्ड टू फाइंड आउट द डिग्री. और देन है तो हमको ओल्डर और एल्डर में से एक लिखना था. बस हमने टिप में वी हैव रेड दैट एल्डर के साथ तो देन लगता ही नहीं है. वी डोंट यूज देन आफ्टर एल्डर. तो क्या हमने लिख दिया? ओल्डर. सो आवर सेंटेंस विल बी स्टूडेंट्स, Meena is older than me. But students, for doing this exercise, you should be thorough with the rules of forming the comparative and superlative degree. अगर आपको rules आते हैं, then only you will be able to change the positive degree and form the comparative and superlative degree. अगर आपको rules पता है तभी आप comparative and superlative degree बेटा form कर सकते हो. So Meena is older than me. ब्रैकेट में क्या वर्ड था? ओल्ड. एंड ओल्ड की कंपेरेटिव डिग्री ओल्डर भी है और एल्डर भी है. एंड सुपरलेटिव डिग्री इज ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट. बट हमको यहाँ पे देन हमने देखा कि ये देन है, तो देन अगर लगा है दैट मीन्स कि हमको कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी है. सो हमने दोनों कंपेरेटिव डिग्री लिखी, ओल्डर एंड एल्डर. बट देन वी हैड लर्न दैट एल्डर के बाद देन नहीं आता. सो व्हाट वी हैव रिटन? ओल्डर. सो आवर सेंटेंस विल बी मीना इज ओल्डर देन मी. सो प्लीज राइट ओल्डर इन द फर्स्ट प्लान. प्लीज राइट स्टूडेंट्स, मीना इज ओल्डर देन मी. बेटा जिस भी डैश के बाद अगर देन है तो आपको इट शुड इमीडिएटली क्लिक यू दैट दिस इज कंपेरेटिव डिग्री. फाइन. और ब्लैंक के पहले अगर द हो तो इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री है. ब्लैंक के पहले इफ ए, एन, वेरी, एज ऐसा कोई वर्ड है, इट शुड इमीडिएटली क्लिक यू, यार ये तो पॉजिटिव डिग्री है, इसमें तो कंपेरिजन ही नहीं है. गॉट इट? सो देन है ब्लैंक के बाद, तो हमें कंपेरेटिव डिग्री फिल करनी है. Please write older in the first line. Meena is older than me. I hope all of you have written. Now the second one. Aditya is the dash brother of Samrat. And in the bracket, the word given is old. Now, Aditya is the dash brother of Samrat. अब आपको ब्लैंक के पहले बेटा कौन सा वर्ड दिख रहा है? द दिख रहा है, विच सिंबलाइजेस कि यहाँ पे हमको कौन सी डिग्री भरनी है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री. यू हैव टू कीप इन माइंड कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको हमेशा द लगाना ही लगाना है. इट इज द ग्रेटेस्ट डिग्री एंड उसके पहले आपको द लगाना ही लगाना है. तो अब ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैंक में ब्लैंक के पहले द है, वो हमको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो हम डिग्री फिल करेंगे वो कौन सी डिग्री होगी बेटा? दी
सुपरलेटिव डिग्री. फाइन. सो किस वर्ड्स ने हमको इंडिकेट किया? द. अगर ब्लैंक के बाद देन होता तो इंडिकेशन मिलता कंपैरेटिव डिग्री का, बट ब्लैंक के पहले द है विच इंडिकेट्स कि हमको ओल्ड की कौन सी डिग्री भरनी है बेटा? सुपरलेटिव. एंड जो वर्ड पॉजिटिव जो एडजेक्टिव दिया है पॉजिटिव डिग्री का, दैट इज ओल्ड. अब आदित्य इज द डैश ब्रदर ऑफ सम्राट, और हमने टिप ऑफ द डे में क्या पढ़ा था कि वी यूज एल्डर और ओल्डेस्ट फॉर द पर्सन्स ओनली. और जब हम किसी सेम फैमिली मेंबर्स की बात करेंगे तो हम एल्डर या एल्डेस्ट ही यूज करेंगे इसमें. तो ओल्ड का ये दोनों एक ही, सम्राट और आदित्य एक ही फैमिली के दो बच्चे हैं, दोनों भाई हैं, है ना, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं. तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे? एल्डेस्ट. एल्डर और एल्डेस्ट हमको कब यूज करना है? जब हमारा कंपैरिजन किसी एक ही फैमिली के मेंबर्स से हो. ये दोनों ब्रदर्स हैं, दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली, है ना. तो उसके लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट यूज करेंगे, ये आप याद रखना. अगर कंपैरेटिव डिग्री होता तो हम एल्डर यूज करते, देन लगा होता बाद में, बट यहाँ पे पहले द लगा है तो हमने एल्डेस्ट यूज किया. वी हैव यूज्ड द सुपरलेटिव डिग्री. सो आदित्य इज द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ सम्राट. और ये आपको याद रखना है कि एल्डर और एल्डेस्ट हम कब यूज करेंगे? ये जब हम किसी एक ही फैमिली के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, then we will use elder or eldest. And because here the indicates that we have to fill in the blank with the superlative degree, so we have used eldest. Fine. आप oldest और older नहीं यूज करेंगे. इससे पहले वाले में हमने older यूज किया था बिकॉज वहां रिलेशन नहीं था, कोई सेम फैमिली के दो लोग नहीं थे, है ना. बट यहाँ तो इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों ब्रदर्स हैं, दैट मीन्स दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली. तो इनके लिए हमको एल्डेस्ट यूज करना है. सो प्लीज राइट एल्डेस्ट. सो आदित्य इज द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ सम्राट. फाइन. आई होप all of you have done, students. Now I'll erase this and write the third one. The third one is lead is a dash metal, and in the bracket the word given is heavy. Positive degree है बेटा वो heavy. Now look at the sentence carefully. Lead is a dash metal. अब बेटा ब्लैंक के पहले कौन सा वर्ड है? ये कौन सा वर्ड है? अ. As I said, कौन से डिग्री के पहले ए, एन, वेरी, एज ये आता है? पॉजिटिव डिग्री. और पॉजिटिव डिग्री मीन्स जो ब्रैकेट में वर्ड है दैट इज पॉजिटिव डिग्री ओनली. उसकी आप कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म कर सकते हैं, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. बट ये जो ब्लैंक के पहले का वर्ड अ है, विथ दिस इंडिकेट्स दैट हमको यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ही लिखनी है बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन. वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द मेटल लीड. हम खाली लीड को डिस्क्राइब कर रहे हैं. लीड का किसी दूसरे मेटल का नाम नहीं है कि हम लेड को किसी से भी कंपेयर कर रहे हैं. सो वी विल राइट हेवी as it is. Lead is a heavy metal. किससे आपको बेटा पता चला कि पॉजिटिव डिग्री है? ये ए ने इंडिकेट किया कि दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री एंड देयर इज नो कंपैरिजन इन दिस सेंटेंस. हम लेड को किसी से भी कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं. वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग दैट लेड इज अ हेवी मेटल. तो फॉर दिस वी विल बी यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री ओनली. जिस भी ब्लैंक के पहले अ हो, एन हो, वेरी हो या एस हो पहले या बाद में एस, जहां पे हम दो चीजों को इक्वल करते हैं वहां हम पॉजिटिव डिग्री ही यूज करते हैं. पॉजिटिव डिग्री क्या है? द वन विच इज रिटन इन द ब्रैकेट. सो लेड इज अ हेवी मेटल. प्लीज राइट हेवी in the third blank.
I hope students, all of you have written this. Please write fast. Please write fast. Now, I'll erase this and write the fourth one. Now the fourth one is lead is the dash of all metals, and in the bracket again the word heavy is given. The positive degree is heavy. Now please look at this carefully. Lead is the dash of all the metals. ब्लैंक के पहले बेटा कौन सा वर्ड है? द है. ब्लैंक के पहले क्या है बेटा? द. You have to look at the word. ब्लैंक के बाद अगर देन हो तो कंपैरेटिव डिग्री इंडिकेट करेगा. ब्लैंक के पहले अगर ए, एन, वेरी, एज ये सब वर्ड्स है तो पॉजिटिव डिग्री इंडिकेट करेगा. बट इफ द इज देयर बिफोर द ब्लैंक, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमको यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है. बिकॉज लेड इज द डैश ऑफ ऑल मेटल्स. ऑल मेटल्स, जितने भी, मोर देन 2 चीजों से कंपैरिजन है कि जितने भी मेटल्स हैं सब में से हैवी कौन सा है? लेड है. तो हैवी की बेटा सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? नाउ एवरीवन, बिफोर राइटिंग द डिग्री लुक ओवर हियर. हैवी की स्पेलिंग क्या है? HEAVY. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ हैवी. लास्ट में क्या है हैवी के? Y है, और Y से पहले क्या है? V है. तो अभी इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? HEAV. Y किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I में, और I के बाद हम क्या लगा देंगे? EST. आपको ये पता होना चाहिए. और ये कैसे पता होगा? जब आपको रूल्स एकदम आपको मेमोराइज्ड होंगे. इफ यू नो द रूल्स देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. नाउ हमने y, जहां पे लास्ट स्पेलिंग में पॉजिटिव डिग्री की अगर y है एंड y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, v तो कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए? y को किस में चेंज कर देंगे? I में, और EST लगा देंगे. अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी होती तो y को I में चेंज करते और क्या लगा देते? ER. So keep this in mind. So we will write heaviest in the fourth blank. Lead is the heaviest of all metals. The indicate कर रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है. और बेटा ऑल मेटल्स, ये जो कंपैरिजन है मोर देन 2 मेटल से है, सारे मेटल से है, मोर देन 2 से है, तो हमें कौन सी डिग्री बेटा यूज करनी है? वी हैव टू यूज द सुपरलेटिव डिग्री. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव डन. रिमेंबर, पॉजिटिव डिग्री कब यूज करेंगे? व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, और व्हेन वी वांट टू शो दैट 2 थिंग्स आर इक्वल, और वी वांट टू डिस्क्राइब अ थिंग. कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करेंगे? जब 2 चीजों में कंपैरिजन हो, एंड उसके बाद हमेशा देन आता है. सुपरलेटिव डिग्री कब यूज करेंगे बेटा? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन इन मोर देन 2 थिंग्स. एंड सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले क्या आता है? द. तो द, देन, अ, वेरी, एंड, ये आप इंडिकेट करेंगे कि कौन से डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको यूज करना है. I hope students you all have done. Now erase this and write the 5th one. This answer is, so students, this answer is very, and in the bracket the word written is good. Now all of you please look at this sentence carefully. This answer is very dash.
And as explained earlier, blank के पहले अगर अ हो, एन हो, वेरी हो, दिस इंडिकेट्स कि आपको कौन सी डिग्री फिल करनी बेटा? पॉजिटिव डिग्री. तो पॉजिटिव डिग्री गुड की एज इट इज गुड ही है. We'll write the word as it is because कौन सा वर्ड इंडिकेट कर रहा है? वेरी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है. वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग दिस आंसर, है ना? दिस आंसर इज वेरी गुड. एंड अगर कोई भी डिग्री के पहले ए, एन, वेरी, एज आए, ये तुरंत इंडिकेट करता है कि ये पॉजिटिव डिग्री है. देयर इज नो कंपैरिजन. कोई इसका आंसर का किसी दूसरे आंसर से तो कंपैरिजन है ही नहीं. यहाँ पे हमने खाली आंसर को डिस्क्राइब किया दैट दिस आंसर इज वेरी गुड. सो दिस इज पॉजिटिव डिग्री. तो गुड को आप एज इट इज लिख देंगे. और किस वर्ड से आपको इंडिकेशन मिला चिल्ड्रन? फ्रॉम द वर्ड वेरी. अ हो, एन हो, वेरी हो, ये तुरंत इंडिकेट करता है दैट यू हैव टू फिल विथ पॉजिटिव डिग्री. सो प्लीज राइट गुड in the fifth blank. I'm going to erase this and write the sixth one, students. That employee is dash, then his colleague. And the word in the bracket is children hard work. Now, that employee, I hope all of you know the meaning of employee. Employee is a person who works in an institution or in firm. जो बेटा कहीं दूसरी जगह जो काम करता है किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूशन में, वो एम्प्लॉय कहलाता है. लाइक आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी बिकॉज आई वर्क इन आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी. तो मैं किसकी एम्प्लॉय हूँ? आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी. So that employee is dash, then his colleague. And what do you mean by colleague? COLLEAGUE. colleague मतलब में जो साथ में काम करते हैं. Like I'll tell you, Sangeeta Mishra ma'am is my colleague. Rupesh Chaudhary sir is my colleague. Sunil Kumar Singh sir is my colleague. Aanchal Singh ma'am is my colleague. Stuti ma'am is my colleague. है ना? तो जो मेरे संग काम करते हैं हम सब एक दूसरे के क्या है बेटा? कलीग. कलीग मतलब जो साथ में काम करते हैं. अब आपके फादर के या मदर के ऑफिस में जो उनके साथ काम करते होंगे वो उनके क्या कहलाएंगे बेटा? कलीग. सो COLLEAGUE कलीग. कलीग मतलब जो लोग साथ में काम करते हैं. सो दैट एम्प्लॉय इज डैश, देन हिज कलीग. Now look at the word then after the blank. This word indicates that we have to fill in the blank with the comparative degree. हमें ये blank बेटा किससे fill करना है? Comparative degree से. Now the word given in the bracket is hard working. This is a big spelling and generally बेटा जो big spellings हैं ये more than 2 syllables word होते हैं. Now how do we find out कि इसमें कितने syllables हैं? We'll keep our palm in front of our mouth and then what we'll do? We'll speak this word loudly. And the number of hot puff of air we feel on our palm will tell us the number of syllables in this word. Hard working. So, more than 2 times we have felt the puff of air. So, this indicates कि इस word जिसमें more than 2 syllables है उसकी comparative degree में उसके आगे क्या लगेगा? More. और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके आगे क्या लगेगा बेटा? मोस्ट. बट द वर्ड
then indicates that we have to fill the blank with the comparative degree, because यहाँ comparison दो लोगों में है, between the employee and the colleague. एक colleague और employee दो लोगों में comparison है, तो हम यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे? more hard working. हमने more क्यों लगाया? Because hard working is a word with more than 2 syllables. So that employee is more hardworking than his colleague. Got it? I hope all of you have written more hardworking in the 6th blank. So that employee is more hardworking than his colleague. Done? Now I'm going to erase this and write the 7th one. Her bag is dash than mine, and the positive degree given in the bracket is expensive. Expensive means costly. Now, the sentence is, her bag is dash than mine. Fine. Now the word then after the blank indicates that we have to write the comparative degree of the positive degree expensive. हमें expensive की comparative degree blank में भरनी है. और किस word ने हमको बेटा indicate किया? The word then. So, her bag is dash than mine. यहाँ पे किस चीजों में गए? दो लोगों का बैग है, उसका बैग और मेरा बैग. So her bag is dash than mine, and the word positive degree given in the bracket is expensive. Look, मैं बोल रही हूँ, this indicates that this word has got more than 2 syllables. So put your palm in front of your mouth and speak the word loudly. And the number of puff of air you feel on the palm will tell you the number of syllables in this word. So speak and tell whether it has got, this word has got more than 2 syllables. Expensive. 2 से ज़्यादा बार hot puff of air feel हुआ. So हम क्या करेंगे? For words which have got more than 2 syllables, we'll be adding. क्या हम add करेंगे इस word से पहले for comparative degree? More. So her bag is more expensive than mine. Her bag is more expensive than mine. हमने more क्यों लगाया बेटा? Because this word has got more than 2 syllables. And जो words में more than 2 syllables हो, उनके आगे हम comparative degree में more more लगाते हैं. And to form the superlative degree, हम क्या लगाएंगे बेटा? most, most. So students, I hope these 7 fill in the blanks are clear to you. Students, please keep on revising all the taught units and exercises as your half-yearly exams are approaching, and you really need to work hard to improve your performance. That's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.